So we'll continue with our critical reasoning, the assumption questions, the short RCs, in which you'll be asked to find the assumptions. So like we discussed in the last session, assumptions are basically, they are missing link which connect premises with the conclusion. Some basis or evidence is given in an argument, right? Based on which a conclusion is made, and something which is not mentioned but should logically follow, that is your assumption. मैंने आपको उसके लिए एक छोटी सी इक्वेशन भी बनाई है जिससे आप समझ सकते हैं कि assumptions क्या होते हैं. So premise आपके होते हैं facts या evidence. आप इन jargon से कभी confuse मत होना. Premise का मतलब बस वही होता है कि जिसपे आपका argument जो जिसके basis पे बना है आपका argument, वो उसका premise कहलाता है. Premise पे जब हम assumptions add करते हैं, so it leads to your conclusion, right? So within the last session, I told you a negation strategy in which I said that if you directly are not able to come to the right assumption, there's one more strategy that you can follow, which is a negation strategy in which, जैसा कि मैंने आपको बताया कि premise और assumption को मिलाएं तो conclusion बनेगा. That means assumptions they support conclusion, right? अगर assumptions का मैं opposite create कर दूं तो वो conclusion को क्या कर देंगे? Weaken कर देंगे. तो एक strategy ये भी है assumptions को identify करने का, हर option का हम opposite option create करें and let's see which option will weaken the conclusion after its opposite has been created. और जो भी weaken करेगा conclusion को हम उसको सही assumption मान के चल सकते हैं. Let's look at question. I think we did the 10th question in the last session. We'll do the 11th one. ठीक है, मैं ये आपको negation यहाँ पे अप्लाई करके दिखाता हूँ 11th क्वेश्चन में. आप लोग पहले पढ़ लीजिए and if you guys are able to come to the right answer or whatever answer you feel is right, you can suggest that one and then we'll try to apply the negation strategy. क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या assumption होना चाहिए? They are saying that newly discovered painting on wooden panel by Michelangelo must have been completed after 1507 but before 1509. So they are saying कि उसकी जो dating है painting की वो इस ड्यूरेशन के बीच में ही हो सकती है. 1507 से 09 के बीच में हो सकती है. It cannot have been painted earlier than 1507 because one of its central figure carries a coin that was not minted until that year. So this coin was not created until 1507 and the character within that painting is actually carrying it. That means it was not made before 1507 and they are saying that it cannot be painted after 1509 because it contains a pigment that Michelangelo is known to have abandoned when a cheaper alternative became available in that year. So after 1509, he has not used that kind of pigment. So it has to be between 1507 to 1509. So you can apply the negation strategy also for every option, create opposite of it and see which of the following is weakening the conclusion. आप हर option का एक opposite भी create कर सकते हैं. वहाँ जो भी information लिखी है उसके साथ no या not लगा दें या no लिखा हुआ है तो उस no को हटा के पढ़ें और फिर देखिए अगर वो आपके कंक्लूजन को वीकन करता है. कंक्लूजन क्या है कि ये डेट्स के बीच में ही बनी हुई है पेंटिंग, राइट? सो अगर उसका अपोजिट वीकन कर रहा है दैट मीन्स वो एजम्पशन सही है. एजम्पशन तो सपोर्ट ही करते हैं लेकिन एजम्पशन का अपोजिट वीकन करता है.
So a lot of you are suggesting different options. Apsar says C, Ashwini is saying B, Harshala says C, Janvi says C, Yashvi B, Himali A, Heba is suggesting A. So most of you are suggesting A, B and C. Shivam says A option. चलिए मैं आपको निगेशन अप्लाई करके ही दिखाता हूँ. हर ऑप्शन को हम उठाते हैं और उसका अपोजिट क्रिएट करते हैं देखने के लिए कि निगेशन वर्क कैसे करता है. तो यहाँ पे लिखा है नो स्टॉक्स ऑफ द एबंडेंट पिगमेंट एग्जिस्टेड आफ्टर 1509. लेट्स क्रिएट अपोजिट ऑफ दैट. स्टॉक्स ऑफ एबंडेंट पिगमेंट एग्जिस्टेड आफ्टर 1509. But is this weakening my conclusion? The conclusion itself is suggesting it has already included this information that he chose to not use that pigment, right? Michelangelo is known to have abandoned when a cheaper alternative became available. So even if these stocks of abundant pigment exist after 1509, it's him who has abandoned it, right? So स्टॉक के रहने ना रहने से ही आर्ग्यूमेंट वीक नहीं पड़ रहा है. अगर मैं ये नो वाली बात हटा दूं और मैं बोलूं कि स्टॉक एग्जिस्ट करता था, तो ये बात मेरे आर्ग्यूमेंट को वीकन कर देनी चाहिए. और उन्होंने कहीं भी अपने आर्ग्यूमेंट में ये नहीं कहा कि स्टॉक नहीं था. उन्होंने कहा कि माइकल एंजेलो ने अबेंडन कर दिया, उसको यूज नहीं करना था. cheaper alternative आया तो he abandoned this one. They never said that stock did not exist for this thing, right? So the opposite of A is not weakening my argument. That's why I cannot consider this as right assumption. Are you guys agreeing on this point? किसी को भी प्रॉब्लम हो तो आप बता दो, क्योंकि काफी लोगों को A लग रहा था, right? I'm sure you have got it right. अगर नहीं समझ आएगा पूछ लीजिएगा. This is very important and very crucial concept. ये आपको सिर्फ शॉर्ट आरसीज पे नहीं, लॉन्ग आरसीज पे भी काम आने वाली है स्ट्रेटेजी. assumptions को निकालने का एक तरीका यही होता है अपोजिट्स क्रिएट करने का, राइट? सो ए आई हैव रिमूव्ड. माइकल एंजेलो डिड नॉट को हटा देते हैं हम इस इंफॉर्मेशन में. माइकल एंजेलो वर्कड ऑन पेंटिंग ओवर द कोर्स ऑफ सेवरल इयर्स. if this information comes out that he was working on the painting from last couple of years, so maybe he started painting it in 1501, right? Then he painted a character in 1507 who was holding the coin. Then he painted it until 1509, in which till the time he was using that pigment in the painting, right? So अगर ये वाली बात पता चल जाती है कि उसने over the years several years तक इस painting पे वर्क किया है, तो फिर ये जो डेटिंग है ये गलत साबित हो सकती है. समझ रहे हैं ना कि उसने बनाना तो चालू 1501 में कर दिया था या और पहले कर दिया था, 1480s में चालू कर दिया था उसने ये पेंटिंग पे काम करना, पर फेजेस में काम हो रहा था. ठीक है, तो उसने जो उसमें कैरेक्टर ड्रॉ किया है वो ठीक है, वो 1507 में ही शायद किया होगा जब वो कॉइन बन गया था. लेकिन उसके अलावा उसने पेंटिंग हो सकता है बहुत पहले से चालू करके रखी हो अपनी, राइट? सो इफ दिस पॉइंट कम्स आउट, इट कैन एक्चुअली वीकन. मैं अगर ये डिड नॉट हटा दूं तो ये वाला जो ऑप्शन है बी, माइकल एंजेलो worked on the painting over the course of several years, this is actually attacking my conclusion. This is weakening my argument. This could be a right assumption, right? That's why ये जिस तरीके से लिखा है इट विल सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट कि उसने ओवर द कोर्स ऑफ सेवरल इयर्स नहीं किया होगा, उसने इसी डेट से चालू करके इस डेट पे खत्म किया होगा. यही फिक्स डेट्स होंगी उसकी, राइट? सो आई कैन कीप माय ऑप्शन एज बी because some of you were suggesting C as well, so I'll go to C and see what is wrong with that. The coin depicted in the painting was known to general public in 1507. uh, let's create opposite of this one. The coin depicted in the painting was not known to general public in 1507. So is the author assuming that public knows about that coin? He's just saying the coin wasn't created. See, knowing by public and creation of that coin are two independent events. They are not interdependent events. Are they interdependent events? Interdependent का मतलब है कि एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. कि कॉइन क्रिएट तभी होगा जब पब्लिक जानती है, या पब्लिक जानती है तभी उस कॉइन के क्रिएशन को हम एक्सेप्ट करेंगे, राइट? मे बी जनरल पब्लिक उस कॉइन के बारे में नहीं जानती होगी, लेकिन वो कॉइन मिंट उसी साल हुआ था. उस टाइम पे 1507 पे उस कॉइन को क्रिएट कर दिया गया था. अगर मैं इसका अपोजिट क्रिएट कर दूं, द कॉइन डिपिक्टेड इन द पेंटिंग वाज नॉट नोन टू जनरल पब्लिक इन 1507, इट विल नॉट वीकन माय आर्गुमेंट, बिकॉज़ द आर्गुमेंट इज नॉट बेस्ड ऑन दैट public knew or did not know about the coin. The argument is based on the fact that coin was created in that year.
तो ये उस बात को टच भी नहीं कर रहा है, उस बात को ये वीकेंड भी नहीं कर रहा है, तो आई हैव टू लेट गो दिस ऑप्शन सी ऑल्सो. D, the wooden panel on which the painting was executed cannot be tested accurately for age, which is kind of weakening the argument, right? The wooden panel, if it cannot be tested accurately for age, then just relying on this dates 1507 1509 can be unreliable. ठीक है, अगर पता ही नहीं चल पा रहा है कि उसकी एज क्या है, तो ये assumption तो सही नहीं होगा, ये तो काइंड ऑफ वीकन कर रहा है. हाँ, कोई भी ऑप्शन डायरेक्टली, अगर डायरेक्टली उसका अपोजिट नहीं, अगर उसका डायरेक्ट लिखा हुआ तरीका ही आपके कंक्लूजन पे डैमेज कर रहा है या अटैक कर रहा है, तो एजम्पशन बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि एजम्पशन तो सपोर्ट करते हैं कंक्लूजन को, उसके अपोजिट वीकेंड करते हैं. Michelangelo's painting style did not change between 1507 and 1509. Let's say that it changed, did not remove कर देते हैं, it changed between 1507 and 1509. How does it make difference? Are we talking about his style? No, we just spoke about that within the painting. He has used a character who was holding a coin, which was minted in that year. And second information we have is that he has used a pigment which he abandoned after 1509 in the painting. So nothing about style has been mentioned. There's no point in discussing that. Do you guys agree upon option B now? नहीं समझ आए हो आप पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि एजम्पशन ही सबसे पेचीदा चीज है. आपके सारे शॉर्ट आरसीज और जितने क्वेश्चंस हैं उसमें एजम्पशंस फाइंड करने में ही सबको सबसे ज्यादा टाइम लगता है, या ये रीजनिंग स्किल्स डेवलप होने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है. चलिए और क्वेश्चंस पे आते हैं एजम्पशंस के. ये वाला क्वेश्चन पढ़िए फर्स्ट. यूज द सेम स्ट्रेटेजी, negation. ठीक है, आप लोग वो क्लोज डायग्रामिंग कर लेना. अगर आपको ये आर्ग्यूमेंट्स पेचीदा लगते हैं या इनकी लिंक क्रिएट करने में टाइम लग रहा है ना, just go with that strategy of creating a small diagram in which you can connect things, how they are related. So Yashvi is suggesting E option. Tanvi also says E. Shivam is also suggesting E option. ठीक है, उसका प्लान बड़ा क्लियर है कि हम लो क्राइम डिस्ट्रिक्ट से कुछ पुलिस ऑफिसर्स हटा लेते हैं और उनको हाई क्राइम डिस्ट्रिक्ट्स पे ले आते हैं, और इस तरीके से ही इज प्लानिंग दैट सिटी वाई का क्राइम रेट हम कम कर देंगे. They'll decrease the number of crime. His proposal is based on city-wide crime data that show that number of crimes in any district of the city decreases when additional police officers are moved into that district. So a link which he's creating is more police officers in a district leads to less crimes, decrease in crimes, right? So Shivam, Tanya, Janvi, Himali, Hiba, Ujjwal, they all are suggesting E option. So बहुत ही क्लियर इसने लिंक कर दिया है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही सोल्यूशन है कि बाकी डिस्ट्रिक्ट से अगर हम जिस डिस्ट्रिक्ट पे वैसे ही क्राइम लो है, वहां से हम पुलिस ऑफिसर्स मूव करके हाई क्राइम डिस्ट्रिक्ट पे ले आते हैं, एंड दैट्स हाउ विल डिक्रीज द ओवरऑल क्राइम विद इन द सिटी, राइट?
सो आपको वही करना है, उल्टा करके आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है. सो आई थिंक यहाँ पे तो बड़ा अनडिस्प्यूटेड ई सब लोग कह रहे हैं, पढ़ लेते हैं ई को. Districts of the city from which police officers are moved do not experience significant crime increase shortly after removal of those officers. Let's create opposite of this to see if it's weakening our argument. District of the city from which police officers are removed experience significant crime increase shortly after removal of those officers. So these districts, if they are experiencing significant crime increase just when the officers are removed, then this plan is a flawed plan. फ्लॉड हो गया ना. आप तो सोच रहे थे कि लो क्राइम से हटा लेते हैं, वो लो क्राइम से आपने जैसे ही हटाई वहां क्राइम बढ़ने लगा. राइट. तो आपका हो सकता है ओवरऑल बैलेंस ही हो जाए. आपने हाई क्राइम डिस्ट्रिक्ट पे पुलिस ऑफिसर्स को रखा तो वहां क्राइम कम हुआ, लेकिन लो क्राइम पे फिर से क्राइम बढ़ने लगा. इफ दैट बिकम्स द केस देन योर प्लान इज अ फ्लॉड प्लान. So this can weaken the reasoning. If this can weaken the reasoning of this argument, this can be the right assumption. ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पे. सेकेंड क्वेश्चन देखिए. ऑनलाइन सेशंस है तो आप लोग शाय मत करिएगा क्वेश्चंस पूछने में या कुछ भी. इफ यू वांट आई कैन अनम्यूट यू ऑन chat. If you're not comfortable typing your queries, you always can say that unmute me. I'll put you on unmute and you can raise your queries. ठीक है. हमेशा कंक्लूजन्स को देख के ही चलिएगा. assumptions में उसमें उन्होंने बहुत सारे फैक्ट एविडेंस दिए हैं. यू जस्ट हैव टू कंसंट्रेट ऑन द कंक्लूजन. So within this, what is your conclusion? Such an increase would cause an alarming rise in sea levels, displacing millions of people by destroying major population centers along the world's coastlines. This is their conclusion. And this is based on what? That global warming experts believe कि global temperature rise हो रहे हैं between 3 to 8 degree Fahrenheit during the next century. और इस कारण से सी लेवल्स इतने बढ़ जाएंगे कि वर्ल्ड की कोस्टल पॉपुलेशन डिस्प्लेस मिलियंस ऑफ पीपल लिविंग इन दैट वर्ल्ड्स कोस्ट लाइन, उनकी लाइफ डिसरप्ट होगी. द assumption वही होगा आपका जिसका अपोजिट कैन वीकन दिस रीजनिंग. So Garvit, Tanvi, Shivam, Yashvi and Ujjwal, they all are suggesting E option. Tanvi says confused between B and E. ठीक है Tanvi. Just create opposite to see if it can weaken the reasoning of the argument. I'll create opposite of E option. Human activities are not the sole cause of increasing global temperatures. Let's go back to the argument to see if this is weakening their reasoning. Did they say that human activities are responsible? Only human activities are responsible. They have said that although there has been great scientific debate for decades over global warming, most scientists now agree that human activity is causing Earth's temperature to rise. So most scientists believe, right? And most scientists, they say that human activity is causing the Earth's temperature to rise. They are not saying only human activity is causing. See, be very careful when they are using these terms. Only, few, majorly. इनको हम क्वालिफायर्स कहते हैं. ये क्वालिफाई करते हैं किसी स्टेटमेंट को, राइट. मेजरली इस तरह के जितने भी सेंटेंस क्रिएट हो रहे हैं ना, परहैप्स, मैं उनको चेंज नहीं कर सकता हूँ. दैट मीन्स कि अगर मेरे आर्ग्यूमेंट में कहीं पे ओनली वर्ड यूज नहीं किया, देखो उन्होंने बोला है कि ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉजिंग, बट दे हैव नॉट सेड ओनली ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉजिंग द अर्थ टेम्परेचर टू राइज. सो इफ आई एम गोइंग विथ ऑप्शन ई, इट कैन नॉट एक्चुअली डैमेज माई आर्ग्यूमेंट. Human activity is not the sole cause. It is a major cause maybe, but not the sole cause. It could be a 90% cause.
It could be 80% cause for the rise in global temperatures, but there could be other natural phenomenon because of which the global temperatures are rising, which are not related with human activity. It could be animals also. Animals के भी excretion से जो gases and gases environment में release होती है, methane release होती है, again that also leads to rise in temperature. That also leads to global warming. Although this is not part of argument, I'm just helping you to understand that there could be other causes also. And within the argument also, they have not said that only human activities are responsible for that. So even if I create opposite of E option, that is actually not damaging my argument. So E is out of our options now. What else? Which option we can go for now? Hibba says it should be A. Yashvi A, Himali A, Shireen and Tanvi. Shireen is saying A and Tanvi is coming to B now. देखो जैसे कुछ ऑप्शंस और भी ट्रैप हैं जो मैं बता देता हूँ, जो आप लोगों ने सजेस्ट तो नहीं किए हैं, बट दे अगेन आर ट्रैप. फॉर एग्जांपल सी ऑप्शन, rising sea levels similarly affect all coastal population centers. Let's create opposite of this to see if it's damaging my argument. Rising sea levels do not similarly affect all coastal population centers. That means कहीं ज्यादा डैमेज हो रहा है कुछ कोस्टल सेंटर्स पे, कहीं कम हो रहा है. तो क्या उन्होंने ऐसा कहा था इक्वल प्रोपोर्शन पे डैमेज होने वाला है? तो मैं ऊपर अगर पढ़ूं तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, राइजिंग सी लेवल्स will displace millions of people by destroying major population centers along the world's coastlines. पर डैमेज सारे वर्ल्ड की कोस्टलाइन पे एक जैसा होगा. फॉर एग्जांपल मुंबई कोस्टलाइन इज देयर, अदर प्लेसेस व्हिच आर सराउंडेड और व्हिच आर एडजेसेंट टू ओशन और सी, क्या वहां सब जगह डैमेज बराबर होने वाला है? ये तो उन्होंने कहीं नहीं बोला है. तो ये सिमिलरली वाली बात कुछ डैमेज नहीं करती मेरे आर्ग्यूमेंट को, राइट? अगर सिमिलरली इफेक्ट नहीं भी हो रहे हैं पॉपुलेशन सेंटर्स, दिस विल नॉट डैमेज माय आर्ग्यूमेंट. द अपोजिट इज नॉट वीकनिंग माय आर्ग्यूमेंट. अब ए और बी में हम डिसाइड कर लेते हैं क्या आना चाहिए. बी सेज इंडिविजुअल्स विल नॉट बिकम मोर अवेयर. Let's assume that individuals will become aware of the steps they can take to reduce the emission of greenhouse gases. Now, have they used greenhouse gases as one of the reasonings to say, see, ये पता है किस तरह के ऑप्शंस होते हैं जो आपको आपके आउटसाइड नॉलेज से बायस करना चाहते हैं. फ्रॉम आउटसाइड नॉलेज व्हाट वी नो इज दैट ग्रीन हाउस गैसेज लीड टू ग्लोबल वार्मिंग. तो ये आपको इस तरीके से ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है कि आप इस कॉन्सेप्ट को यूज कर लेंगे इस आर्ग्यूमेंट के एजम्पशंस में. हाँ, ये स्टेटमेंट तन्वी पता है कब सही हो जाता है? जहाँ पे ये लोग एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस की जगह ये लोग बोलते हैं कि इंडिविजुअल्स विल नॉट बिकम मोर अवेयर ऑफ द स्टेप्स दे कैन टेक टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग or to prevent global warming, rather than using this emission of greenhouse gases which is not part of argument anywhere. ये तो कनेक्शन हमें पता है बाहर से कि ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग ये दो कनेक्टेड फिनोमिनन होता है, राइट? पर ये आर्ग्यूमेंट में तो यूज ही नहीं किया, तो हम उनकी रीजनिंग पे अटैक नहीं कर पाएंगे इस चीज से. इसी को अगर मैं चेंज कर दूं, मॉडिफाई कर दूं, तो कर सकते हैं जब हम इसमें कंटेक्स्ट ग्लोबल वार्मिंग लाए हैं. सो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन, राइट? एक अपोजिट क्रिएट करके देख लीजिए वीकेंड कर रहा है कि नहीं. द न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इन द नेक्स्ट सेंचुरी विल डाइवर्ट, आई विल रिमूव वर्ड नॉट and I'll go with word will divert rising seas from the world's coastal cities. If this thing happens, then their conclusion could be wrong. Their conclusion was saying that rising sea levels will displace millions of people by destroying major population centers. Maybe that will not happen because कोई शायद ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जो ये सी का जो पानी राइज होगा इसको डाइवर्ट कर पाए. अगर ये डाइवर्ट कर देती है तो इनका जो कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा. सो अगर इसका अपोजिट इज वीकनिंग माय कंक्लूजन, देन दिस इज प्रोबेबली द राइट ऑप्शन. ए इज करेक्ट ऑप्शन. ए इज द assumption which this author is making. Sorry. Just a moment.
Yeah, let's come to question third now. Now this is more tricky question because it is asking you for accept. आप पढ़ लीजिए फिर डिस्कस करते हैं इसको. So somebody is making this statement and putting up some facts and statistics in which they say that New Hitfar driver is the only golf club which is using the space age titanium kryptonium alloy to strengthen its head. And this is so good that last 12 winners of the major tour championship have all recently switched to it. Isn't it time for you to add power to your swing and distance to your drives? Trade in your old driver today and hit far tomorrow. All of the following claims are either implied. That means all of the following can be the assumptions except for the one which is not the assumption. So ये उल्टा क्वेश्चन पूछा है. अभी तक हमसे assumptions पूछे हुए थे सब जगह पे. अब हमसे पूछा हुआ है इसमें से कौन सा assumption नहीं हो सकता है. तो ऑब्वियसली जो assumption नहीं है वो कैसा होगा ऑप्शन. इट विल नॉट सपोर्ट योर कंक्लूजन डायरेक्टली. उसका अपोजिट वगैरह क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है आपको. वो जिस तरीके से लिखा है वो कंक्लूजन ने बोली नहीं है बात. आपको वैसा सोचना है कि कंक्लूजन ने वो बात रखी नहीं है. बाकी सब ऑप्शंस में कहीं ना कहीं वो इम्प्लाइड होगा आर्ग्यूमेंट में. हिबा सेज इट शुड बी बी. ठीक है, बाकी लोग क्या बोलते हैं देख लेते हैं. या तो ऑप्शन बाय ऑप्शन. ए कहता है स्विचिंग टू द हिटफा ड्राइवर विल इम्प्रूव योर प्ले. दे आर इम्प्लाइंग दैट because they are saying switch to it. Isn't it time for you to add power to your swing and distance to your drives? So they are talking about it will improve your play. So this option one is implied. Implied is कि explicitly तो नहीं लिखा है पर ये कहीं ना कहीं हम assume कर सकते हैं. तो A में assume कर सकता हूँ. B B के बारे में आप लोगों को क्या कहना है. Garvit and Apsara are suggesting D. D क्या कहता है. Your existing driver is inferior to the Hitfa driver. That is what they are implying, right? This driver is so good, right? और उसकी उन्होंने टेक्नोलॉजी भी बता दी है कि वो टाइटेनियम क्रिप्टोनियम अलॉय है. ट्रेड इन योर ओल्ड ड्राइवर टुडे एंड हिट फॉर टुमारो. एड पावर टू योर स्विंग. All of these things are pointing out to one thing, that your existing driver is not as good as Hitfar driver. That's why they are saying this is better than that. So this point is also implied, right? Major championship winners are experts and know what constitutes a great golf club. This could also be right because they've used their examples. Why they'll be using the examples? Because these are influencers. Major championships के winners जो हैं वो experts या influencers ही होंगे and they pretty much know कि great golf club के लिए क्या चीजें अच्छी होती हैं. इसलिए उन्होंने उसका example use किया. तो this is also implied. Only the option B is not implied, right? बी ऑप्शन इम्प्लाई नहीं किया गया है. बी देखो इन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा था कि वो 12 विनर्स इसको खेल के 12 विनर्स बने. दे व्हाट दे सेड वाज दिस ड्राइवर इज सो गुड लास्ट 12 winners of the major tour championships have switched to it. So they were already winners and they switched to it. So इसका कहीं भी कंट्रीब्यूशन नहीं उनको विनर बनाने में. बी क्या कह रहा था. द हिटफा ड्राइवर हेल्प द लास्ट 12 मेजर चैंपियनशिप विनर्स अचीव देयर विक्ट्री. नो, दे वर ऑलरेडी चैंपियंस. They've chosen this. This is typical case of causal relationship. Do you remember causal relationship questions? जहाँ पे आपने क्या देखा कि सारे 12 चैंपियंस ये वाला यूज कर रहे हैं. हिट फार पे स्विच कर लिया है. दैट मीन्स हिट फार के कारण वो 12 चैंपियंस बने हैं. नहीं, वो ऑलरेडी चैंपियंस थे. हिट फार बाद में उन्होंने स्विच किया है. तो बी इज समथिंग दैट इज नॉट इम्प्लाइड, दैट इज नॉट assumed, that is not even indirectly stated in the argument. So I can easily keep option B as my answer. Clear? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग. Question 4 is also closely based on this causal relationship question.
It's again a causal question, A leading to B. ठीक है, मैं छोटी सी अगर इसकी रिलेशनशिप डिफाइन कर दूं, अगर कॉम्प्लेक्स हो रहा है समझने में, तो ये भी कॉजल टाइप का एक क्वेश्चन है जिसमें दे आर सेइंग कि जिनमें D32 म्यूटेशन आया, this is the relationship they are establishing, right? And you don't have to be a bio or science student to understand these kind of terminologies or jargons which they are using. In fact, आप उसको ABC टाइप ही पढ़िए, D32 आपको नहीं पता है चलेगा, ठीक है। सो दे आर सेइंग कि ये जो प्लेग से बचने वाले लोग थे उन सब में क्या हुआ था, एक जेनेटिक म्यूटेशन हो गया था जिस कारण से वो लोग बच गए। दैट इज नोन टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया दैट कॉज द प्लेग फ्रॉम ओवरटेकिंग द इम्यून सिस्टम। तो जो बैक्टीरिया इम्यून सिस्टम को लेता है, इसको आप कोरोना से कंपेयर कर लीजिए तो वैसे ही हो जाएगा, दैट वायरस ओवरटेक्स द इम्यून सिस्टम, राइट। सो सिमिलरली यहाँ पे भी डेल्टा 32 इज नोन टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया दैट कॉजेज, यानी ये म्यूटेशन ने उस बैक्टीरिया को ही हटा दिया जो इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। And to support this hypothesis, researchers tested direct descendants of the residents of English. Descendants are यानी जो उनके बच्चे हुए हैं या उस टाउन में जितने आए थे उनको उन्होंने चेक किया, and unusually large proportion of people survived the plague. More than half of these descendants tested positive for mutation 32, a figure 3 times higher than that found in other locations. And based on this hypothesis, they are suggesting D32 has led to these people surviving the Black Plague. The assumption you are suggesting, Chris says E, Ashwini, Tanvi, Shireen and Janvi, they are suggesting E option. ठीक है, तो इन अ वे उन्होंने लिंक यही कनेक्ट की हुई है कि D32 इस तरीके का कुछ, राइट, जो मैंने अभी लिखा है चैट बॉक्स पे देखिएगा। D32 के कारण जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं और जेनेटिक म्यूटेशन जब हो जाता है तो लोग सर्वाइव कर जाते हैं। इस तरीके की लिंक उन्होंने बनाई है। तो ये अगेन एक कॉजल क्वेश्चन हो गया है जिसमें ए से चीजें बी पे जा रही हैं। तो मैंने आपको हमेशा बताई है ये चीज कि जब भी कॉजल के क्वेश्चन आए हैं तो उस पर आपको एजम्पशंस अगर पूछे जाएं तो बहुत ही सिंपल सी आप बात याद रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस में एक तो बी टू ए जाना पॉसिबल नहीं होगा, ये उस ऑथर का एजम्पशन होगा कि बी से ए नहीं हुआ है। इफ यू रिमेंबर दैट सिंपल गॉवा एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था कि पैरेट का बाइट ने गॉवा को स्वीट कर दिया, जिसने वो आर्ग्यूमेंट रखा होगा, जिसने वो रीजनिंग रखी होगी, उसने ये भी मान लिया है कि वो गॉवा वाज नॉट ऑलरेडी स्वीट। ठीक है, तो ये जो बी टू ए नहीं हुआ होगा ये पहले से अज्यूम कर रहे हैं। सिमिलरली सी जैसी कोई चीज नहीं हुई होगी उसी टाइम पे जो कि बी पे चली जाए। ये दो assumptions हमेशा आप ले सकते हैं causal relationship के क्वेश्चन में। सो योर ई ऑप्शन इज करेक्ट, द प्लेग डज नॉट कॉज जेनेटिक म्यूटेशन सच एज डेल्टा 32, राइट। जो प्लेग है वो खुद जेनेटिक म्यूटेशन सच एज डेल्टा 32, अगर आप डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं तो अपन वो इनडायरेक्ट वाला तरीका अपनाते हैं जिसमें हम लोग डज नॉट हटा देते हैं।
द प्लेग कॉजेज जेनेटिक म्यूटेशन सच एज डेल्टा 32. अगर प्लेग के कारण जेनेटिक म्यूटेशन हो जाता है डेल्टा 32, तो डेल्टा 32 ऑलरेडी उनकी बॉडी में एग्जिस्टिंग नहीं था. आप क्या सोच रहे थे, उनकी बॉडी में ऑलरेडी डेल्टा 32 था, जिस कारण से वो लोग बैक्टीरिया से बच गए, राइट? सो इट वॉजंट बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक म्यूटेशन, सॉरी, दिस वॉज नॉट ऑलरेडी प्रेजेंट इन देयर बॉडी. अगर ऐसा हमें पता चलता है कि प्लेग के होने से जेनेटिक म्यूटेशन हो गया बॉडी के अंदर, राइट, उसके बाद D32 क्रिएट हुआ था, तो ये उन लोगों का नेचुरल इम्यूनिटी थी जिस कारण से वो बच गए इस बैक्टीरिया से. इसमें इस D32 का कोई लेना देना नहीं है. दैट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस दैट हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम. So plague does not cause genetic mutations such as delta 32. इसका opposite is weakening my argument that the plague causes genetic mutation. So आपकी ये टाइमलाइन क्रोनोलॉजी खराब हो गई है. समझ रहे हैं आप लोग? ई ऑप्शन इज करेक्ट. नहीं समझ आया तो आप लोग पूछ सकते हैं वापस से. और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग assumption पे. फोर्टीन क्वेश्चन देखिए आप लोग, थोड़ा सिमिलर क्वेश्चन है, आपको रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर देगा आपकी, और assumptions फाइंड करने में आप और अच्छे हो जाएंगे. Yashvi says it should be A. A. Tanya, Tanvi are suggesting A. Himali, Kalindi, they all are suggesting A. So this is a very similar question, right? In which they are saying that ये भी कॉजल पे क्वेश्चन आ गया है. वो कह रहे हैं कि डैम्प एरियाज पे वो देखते हैं, सिंस मोल्ड इज ऑलमोस्ट ऑलवेज फाउंड इन प्लेसेस वेयर देयर इज सब्सटेंशियल मॉइस्चर. इफ वन विशेस टू अवॉइड मोल्ड पॉइजनिंग, then one should make sure to keep all internal plumbing in good condition to prevent leakage that could serve as a breeding ground for the mold. तो ये भी एक रिलेशनशिप ऐसी क्रिएट हो रही है कि मॉइस्चर होता है, तो मॉइस्चर पे व्हाट हैपेंस, मोल्ड क्रिएट हो जाता है, और उस मोल्ड से पॉइजनिंग हो जाती है. तो इनका कहना है अगर मॉइस्चर नहीं है तो मोल्ड नहीं है. तो ये रिलेशनशिप भी इस ऑथर ने अज्यूम कर लिया होगा ना कि ए टू बी है, अगर तो बी के कारण ए नहीं हो सकता है. तो ए ऑप्शन इज दैट ऑप्शन. मोल्ड इटसेल्फ डज नॉट क्रिएट मॉइस्चर. इफ मोल्ड क्रिएट्स मॉइस्चर, देन यू आर अटैकिंग द रॉन्ग प्रॉब्लम. आपको तो लग रहा था जहां मॉइस्चर है उसके कारण मोल्ड हो रहा है, तो मॉइस्चर रिमूव कर दिया तो अब मोल्ड पॉइजनिंग नहीं होगी. ठीक है, अब पता चला कि मोल्ड के कारण खुद ही मॉइस्चर क्रिएट होने लगता है वहां पे. So that will not be the right approach. So A option is correct. 16 question.
अब सर प्रैक्टिस से आ जाना चाहिए, एक बार हमेशा उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करो कि हम दो किन चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे 16 क्वेश्चन में आप मुझे बताओ कि आप क्या रिलेशनशिप स्टैब्लिश करोगे। इफ यू वांट, व्हाट रिलेशनशिप यू वुड लाइक टू स्टैब्लिश इन 16 क्वेश्चन। एक बार आप ट्राई करके मुझे बताओ तो मैं समझाता हूँ कहाँ गलत जा रही हैं चीज़ें। अच्छा, एक चलो इसको और मैं छोटा स्टेप बता देता हूँ जिससे आपको इजी हो जाएगा। 16 में आपको कंक्लूजन क्या लग रहा है, सबसे पहले ये बताओ आप। व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ 16 क्वेश्चन? राइट शिवम, स्मोकिंग इंक्रीजेस एंजाइटी, एंक्शियस एंड नर्वस बिहेवियर होता है कंपेयर टू नॉन स्मोकर्स, पीपल हु स्मोक। सो अब मैं क्या डायग्राम बना सकता हूँ इसके लिए अब सर, अगर ये चीज स्टैब्लिश हो गई है जो शिवम ने कंक्लूजन बताया, स्मोकिंग इंक्रीजेस एंजाइटी, व्हाट इज अ स्मॉल डायग्राम आई कैन मेक ऑफ इट, आउट ऑफ इट? ठीक है, ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाएगी जो हम लोग बना रहे हैं छोटी सी, स्मोकिंग राइट अप सर, बस यही हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो उसमें एक कंक्लूडिंग पार्ट दिया होगा जिसमें दो चीजें कहीं किसी तरीके से जुड़ी हैं, किसी एविडेंस पे कोई कंक्लूजन जुड़ा है, तो बस हम लोग वही कर रहे हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे ये चीज हो रही है, अब हमें पता करना है क्या एजम्पशन है। तो एन एजम्पशन शुड सपोर्ट दिस पर्टिकुलर फैक्ट दैट स्मोकिंग लीड्स टू एंजाइटी, right? And the opposite of that assumption should weaken this relationship. So you can work either ways. Either you can go with a direct approach of going to right option, or you can go with a negation strategy by creating opposites of every option and then see which one is attacking or damaging your relationship. So काफी लोग क्या सजेस्ट कर रहे थे, कालिंदी जानवी सी, हिब्बा सेज बी, तन्वी तन्वी सिंह सी, शिवम ई, हिमाली सेज बी, यशवी बी, अश्विनी सी। तो जो भी आपका सही ऑप्शन है ना, उसका जो जो भी आप सोच के चल रहे हैं उसका अपोजिट देखो इस रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर रहा है क्या। जैसे ए तो किसी ने डिस्कस ही नहीं किया है तो ए नहीं करते हैं, क्योंकि अदर हेल्थ प्रॉब्लम से हमें मतलब नहीं है, हमें इस रिलेशनशिप को ही देखना है, स्मोकिंग और एंजाइटी वाली को। बी कहता है एंजाइटी एंड नर्वसनेस डू नॉट मेक इंडिविजुअल्स मोर लाइकली टू स्टार्ट स्मोकिंग। Let's create opposite of this one. Anxiety and nervousness, they make individuals more likely to start smoking. This is actually damaging your argument, क्योंकि ये क्या बता रहा है कि स्मोकिंग के कारण एंजाइटी नहीं हो रही है, एंजाइटी होने के कारण लोग स्मोक करना चालू कर रहे हैं, रिलेशनशिप रिवर्स हो गई है। तो ये ऑथर तो मान रहा होगा ना assumption कि ये रिलेशनशिप रिवर्स नहीं हो सकती, ए के कारण ही बी होता है, बी के कारण ए नहीं हो रहा है, राइट? सो दिस कुड बी द राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी राइट हो सकता है। बाकी ऑप्शंस हम देख लेते हैं। equivalent numbers of smokers and non-smokers were surveyed for the study. It doesn't matter right now. ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ स्मोकर्स नॉन स्मोकर्स स्टडी किए थे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है उन लोगों का मेंटल स्टेट क्या था बिफोर दी स्टडीज, राइट? या जो स्मोक कर रहे हैं उनका पहले से हेल्थ कंडीशन क्या थी, ये हमें पता नहीं है, तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। सी वाली बात, अगर इक्वलेंट नंबर ऑफ स्मोकर्स नॉन स्मोकर्स सर्वे नहीं भी किए थे तो उस पे इस रिलेशनशिप पे कुछ डैमेज नहीं हो रहा है, ये रिलेशनशिप वीकन नहीं पड़ रही है। डी, smokers are aware of the various health problems attributed to smoking including lung cancer and emphysema, doesn't matter. Even if they are not aware, it is not going to touch this relationship which we are discussing, उसको कहीं भी strengthen नहीं कर रहा है ये, तो ये ऑप्शन वैसे ही बाहर है। Smokers who had smoked cigarette immediately before responding to the survey were more anxious and nervous than smokers who had not smoked for several hours. Again, this option could have worked if we were asked to strengthen the argument, but this cannot be assumed. इतनी बड़ी बात हम assumption में नहीं ले सकते हैं ना। हाँ, ऐसी fact पता चले कि जिन्होंने रिसेंट स्मोक किया उनकी एंजाइटी और ज्यादा थी कंपेयर टू जिन्होंने स्मोक थोड़े टाइम पहले किया था, इट कैन स्ट्रेंथन योर आर्ग्यूमेंट, दैट इज फॉर श्योर, राइट? बट दिस विल नॉट बी
एन एजम्पशन, ये एजम्पशन नहीं हो सकता है क्योंकि ये कहीं इम्प्लाइड ही नहीं है पूरे आर्ग्यूमेंट में, ऐसी बात। ठीक है, नेक्स्ट सेशन फिर हम लोग स्ट्रेंथन पे रखने वाले हैं जिसमें विल बी डिस्कसिंग स्ट्रेंथन क्वेश्चन। स्ट्रेंथन क्वेश्चंस आर नॉट एज डिफिकल्ट कंपेयर टू योर एजम्पशन एंड वीकनिंग क्वेश्चंस। एजम्पशन और वीकनिंग ही ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। तन्वी सी ट्रू हो जाए तो फाइंडिंग्स ऑफ द सर्वे वुड नॉट बी रिलायबल। सी देखो, अगर नॉन इक्विवेलेंट नंबर्स के किए हैं, फॉर एग्जांपल, चलो मैं आपको इसको एग्जांपल देके ही बता देता हूँ कि 10 स्मोकर्स सर्वे किए गए थे, 8 नॉन स्मोकर सर्वे किए थे। ठीक है, वो 10 में एंजाइटी ज्यादा दिखी है, 10 में एंजाइटी इज मोर कंपेयर टू 8 नॉन smokers. Still the fact cannot be denied, right? Even if I create unequal numbers and I say that not equal numbers were surveyed in that, and 10 smokers were surveyed and 8 non-smokers सर्वे किए गए थे, 10 जो स्मोकर्स थे उनमें एंजाइटी दिखी है, 8 नॉन स्मोकर्स में उतनी एंजाइटी नहीं दिखी है। तो इससे उनकी फैक्ट पे डैमेज नहीं हो पा रहा है ना, जो उन्होंने बात स्टैब्लिश क्या करी थी कि स्मोकर्स में एंजाइटी ज्यादा होती है। सिग्निफिकेंटली बोला है ना उन्होंने, सिग्निफिकेंटली मोर एंग्शियस एंड नर्वस देन नॉन स्मोकर्स। यानी अगर एंजाइटी का कोई पैमाना होता है, कोई एंजाइटी कोशेंट होता है या एंजाइटी का कोई मेजरमेंट होता है, तो उनका ऐसा कहना है कि वो स्मोकर्स के अंदर 100 में से 80 होता है एंजाइटी, और नॉन स्मोकर्स के अंदर वो एंजाइटी का लेवल 30 या 40 होता है, कम होता है उनके अंदर। तो अनइक्वल नंबर्स को भी अगर आपने सर्वे किया हो तो आप अभी भी इस रीजनिंग पे अटैक नहीं कर पा रहे हो ना। मैंने क्या बोला है कि आपका अपोजिट शुड अटैक द रीजनिंग ऑफ दिस, शुड वीकन द रीजनिंग ऑफ दिस। अनइक्वल नंबर्स विल नॉट अटैक द रीजनिंग एस्पेक्ट। हाँ तन्वी, अगर इसको हम चेंज कर दें और हम उसमें ऐसा बता दें कि जो नॉन स्मोकर्स उन्होंने पिक किए थे वो ऐसे पिक किए हुए थे जो एक्चुअली मेंटली ज्यादा काम थे, और स्मोकर्स उन्होंने एक्चुअली ऐसे पिक किए थे जिनका मेंटल स्टेट ऑलरेडी खराब था, नॉट बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, उनका मेंटली वो पहले ही अनस्टेबल या एंजाइटी फील करते थे। ये जरूर आपके आर्ग्यूमेंट को वीकन कर सकता है, क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं, सिलेक्टिव सैम्पलिंग प्रॉब्लम कहते हैं, जिसमें आपने ग्रुप्स को ऐसा क्रिएट किया गया है ताकि आपकी स्टडी को फेवर करे वो। तो आपने जानबूझ के ऐसा ग्रुप पकड़ा जिसका नेचुरली एंजाइटी लेवल हाई था और वो स्मोकर्स भी थे, तो आपने ये प्रूव कर दिया कि ये देखो, जो स्मोकर्स होते हैं वो एंजाइटी हाई होती है उनकी, राइट। चलिए, I'll see you guys next session, which will be day after tomorrow. We'll try to complete the strengthened question. After that, only paradox and boldface questions would remain. दो ही टाइप के आपके क्वेश्चंस बचेंगे जो अपकमिंग सेशंस में आपके कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद आप लोगों के वोकैबुलरी सेशंस वापस से रिज्यूम हो जाएंगे, इन विच विल कवर द कॉमन एंड एडवांस लेवल वर्ड्स वोकैबुलरी, राइट। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप लोग डेट्स बुक करिए, कोई हेल्प चाहिए उसमें तो आप लोग बताइएगा। अपॉइंटमेंट्स एप्लीकेशन ईटीएस का ऑनलाइन ही पोर्टल पे जाके डेट्स बुक हो जाती हैं, प्रीटी सिंपल प्रोसेस। कहीं पे आपको चीज़ें ना समझ आए हैं, एक बहुत बड़ा फॉर्म वो लोग भरवाते हैं जिसमें आपकी एजुकेशन डिटेल्स और काफ़ी कुछ पूछना चालू कर देते हैं। उसमें जितनी डिटेल्स मैंडेटरी नहीं हो उनको स्किप कर सकते हैं, जितनी डिटेल्स पे एस्ट्रिक नहीं बना होता है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको आप भले स्किप भी कर दोगे तो चलेगा। इट्स नॉट नेसेसरी टू आंसर ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस। In fact, they also give you option to fill those things later on, so you can even choose that. Just make sure that when you're filling the form, your name should exactly be same as mentioned on your passport. पासपोर्ट से सारा नेम को मैच किया जाता है, तो आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में अपियर होने के लिए। डेट को बुक करने के लिए पासपोर्ट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब आप सेंटर पे एग्ज़ाम देने जाएंगे उस टाइम पे आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। या आप होम टेस्ट भी देंगे तो पासपोर्ट आपके पास एज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, एंड दिल मैच योर नेम एग्जैक्टली विथ योर पासपोर्ट, सो मिसमैच नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा मैंने देखा है, पहले लोगों ने किया है, जिसमें पासपोर्ट पे मिडिल नेम लिखा हुआ है लेकिन जब फॉर्म फिल किया तो उसमें मिडिल नेम ओमिट कर दिया आप लोगों ने, तो उसमें भी मिसमैच हो जाता है और डिस्क्रिपेंसी पे समटाइम्स यू आर नॉट अलाउड टू टेक एग्जामिनेशन। सो बी केयरफुल, पासपोर्ट के हिसाब से आपको डिटेल्स भरनी है। हर्षाला इज आस्किंग, आर दी एप्लीकेशन फॉर स्प्रिंग 21 क्लोज्ड?
They are still going on, Harshala, if you would like to apply, but then you'll have to take exams like in next 15 days, I think. If you want to apply for the spring application, you'll have to take both of your examinations, GRE and IELTS, within next 15 days, because September end is the application deadline for most of the universities. So you'll have to बहुत सारी चीजें rush करनी पड़ेगी, हर्षाला. Then we mm, ठीक है तन्वी, आई ट्राई टू प्लान इट. ऐसा कभी मैंने सेशन किया तो नहीं है, बट आई प्लान ऑन हाउ टू गो अबाउट इट एंड व्हाट शुड बी योर क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग यूनिवर्सिटीज एंड ऑल. So I'll take a, Tanvi is basically suggesting me that we should take a session on how to go ahead with the college application. What is the process? What documents are required? How much time does it take? What are the roadblocks? So I'll try to take a session on that, Tanvi. I'll keep you guys updated on that. Chris is asking, sir, that exam passport is required in physical form, soft copy will work. Chris, usually physical चाहिए रहता है, तो अगर आप कुरियर करके बुलवा लोगे अपने पास तो अच्छा रहेगा, राइट? कुरियर करवा लो अगर पॉसिबल है. ठीक है, कंक्लूड करते हैं सेशन को. मिलते हैं फिर हम लोग डे आफ्टर टुमारो. थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड. ट्रस्ट मी, यू ऑल कैन स्कोर वेल ऑन द एग्जामिनेशन. इट्स जस्ट अबाउट प्रैक्टिस. बस प्रोकास्टिनेट मत करो कि हम लोग कर लेंगे, डेट्स तो ली नहीं है. वो पैटर्न जब तक चलेगा आपकी तैयारी नहीं होगी. उसको ब्रेक करने का एक ही तरीका है कि आप डेट्स बुक कर लो, एक सीरियसनेस आ जाएगी. ठीक है, डिसिप्लिन में आप आ जाओगे. यू विल क्रिएट अ टाइम टेबल एंड यू विल अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन. Thank you everyone. I'll meet you day after tomorrow.